Students, you all are welcome again. I hope you all are very fine and taking lesson from my videos. It is very good to see that you all are responding very well to my channel and my videos. I am very thankful to you all. This is all your support that gives me the energy to move forward and do better and better for you all. In my last video, I gave an explanation on the property of light. I hope you all have understood this. Today, I am going to deal with the law of reflection of light and the law of refraction of light. Students, before starting the law of reflection of light, there are something that you should know. You can see here, I have drawn something. मैंने यहाँ कुछ बनाया है. अब मैं इसे आपको एक यहाँ पर एक एक करके समझाऊंगा. आप देख रहे हो, दिस इज सपोज दैट दिस वन x एंड x डैश. ये आपका एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है जिस पर आप एक रेखा देख रहे हैं AO जो है वो इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद एक रे जो है वो बैक होकर के चली जाती है. दिस AO is called as incident ray. What is incident ray? A ray of light that falls on a surface. एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो एक सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस पे पड़ती है. ओके, नाउ OB is called as reflected ray. What is reflected ray? A ray of light that bounce back after striking a surface. एक ऐसा रे ऑफ लाइट जो सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक कर जाती है, वापस लौट जाती है. तो इस रे को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, you should know that what do you mean by reflection of light. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. तो हियर यू कैन सी reflection of light means the reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी घटना है जिसमें लाइट जो है वो बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी सरफेस पे लाइट जब फॉल करेगी, यहाँ से स्ट्राइक होगा और स्ट्राइक होने के बाद ये वापस लौट जाएगी. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. You can see here there are two laws of reflection. According to the first law of reflection, the angle of incidence is always equals to the angle of reflection. Angle of incidence जो है वो हमेशा angle of reflection के equal होती है. आप यहाँ फिगर में देख सकते हो x डैश जो है ये हमारा एक प्लेन सरफेस, प्लेन एंड पॉलिश सरफेस हो गए जिस पे AO जो कि इंसिडेंट रे है वो फॉल हो रहे हैं. कहाँ पर? O पॉइंट पे. ये O पॉइंट क्या है? दिस O पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसके बाद जब ये AO यहाँ पर स्ट्राइक हुए सरफेस पे तो यहाँ से ये बैक हो गए, रिफ्लेक्ट कर गए. तो ये OB जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. And NO is our normal. Now see carefully all of you, the angle between the normal ray and incident ray, this is called the angle of incidence, and the angle between the normal and reflected ray is called angle of reflection.
So according to the first law of reflection, angle I is always equal to angle R. Suppose that angle I is equal to 30 degree, then angle R will also equal to 30 degree. Now a student, here comes the second law of reflection of light. According to second law of reflection of light, you can see here, the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. इसका कहने का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं और जो नॉर्मल है वो सब के सब एक सरफेस पे, एक प्लेन पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी एक ही पॉइंट पे ये तीनों ही रे लाई करते हैं. Students, before starting law of refraction of light, you should know what is the meaning of refraction of light. Here you can say refraction of light means refraction of light is the phenomenon in which light bends when it passes from one medium to another medium. It means what? ये बता रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी घटना है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है. सो हियर कम्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. जैसा कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकंड लॉ में देखा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक सरफेस पे लाई कर रहे थे, जस्ट सेम एज डैट. यहाँ भी आप देखोगे इंसिडेंट रे हैं, रिफ्रैक्टेड रे ये मैंने नहीं बताया था, उसमें आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे किसको कहेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं आऊँगा इस पर, मैं बताता हूँ. तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस में हियर यू कैन सी दिस पॉइंट, ये जो आप O पॉइंट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ इंसिडेंट रे जो आप देख रहे हो AO, नॉर्मल में आप देख रहे हो NON डैश, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल विच आई हैव ड्रॉन हियर. आई हैव टेकन टू मीडियम, यू कैन सी द फर्स्ट वन इज एयर एंड द सेकेंड वन इज वाटर. एयर इज कॉल्ड द रेयर मीडियम, वाटर इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम. आप यहाँ देखोगे कि जब इंसिडेंट रे सीधा इस पॉइंट पर आती है तो इसे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था OR के लाइन में, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि एयर से जब ये वाटर में गई, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के में जाने के बाद बेंड कर जाती है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है. बिल्कुल वही हुआ है यहाँ पर. OB जो आप देख रहे हो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा नॉर्मल के साइड में, NON डैश के साइड में झुक गई है इसकी तरफ. सपोज डेट जैसे मानो कि ये इसकी तरफ खिंच गई हो, जो कि बिल्कुल इसका स्ट्रेट, इसका पोजीशन होना चाहिए था AOR, लेकिन आप देख सकते हो इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज होकर के AOB हो गए हैं. यहाँ OB जो है दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे. स्टूडेंट्स, here comes the second law of refraction of light. According to the second law of refraction of light, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. It always remain constant for a pair of medium. जैसा कि आप इस फिगर में भी आप देख पा रहे हो, the angle between the normal and
The incident ray is called the angle of incidence. The angle between the normal and the refracted ray is called the angle of refraction. According to this law, sin I by sin R, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, the ratio है ना, the ratio of sin I is to sin R is constant. This is the second law of refraction. And the most important thing is that the students, this law is also known as Snell's law. Snell's law. Snell's law is given by a Dutch scientist whose name was Snells. So students, आज मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया, देन आई हैव टॉट यू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट and the law of refraction of light. So this is all we have for today. In coming videos you will get much important topics that will be related to the chemistry. So those you who have not subscribed my channel yet, please subscribe so that you all will get the next upcoming videos very first. Goodbye students, remain healthy and fit and continue with your study. Thank you very much.